Good evening. Requesting to all of you, please mute yourself and please off your camera. অমর অমর ভিডিওটা অফ করো প্লিজ। নমস্কার, hello everyone, welcome to the বৈঠকি in our 167th session of this বৈঠকি, which is jointly organized by Department of Education, Sitaram Mahato Memorial College, Purulia, West Bengal, and also Baneshwar Sarathiwala Mahavidyalaya, Coach Bihar. I would like to express my gratitude uh, to today's keynote speaker as well as chief discussant, Professor Madhav Verma sir. I'm very pleased for your presence. Today, the most discussed topic already you are seen in our poster of the present time is going to be discussed on very important topic, artificial intelligence, from fear to fluency. Sir, uh, it is inform you that so many faculties is being there from Oh, wow. Professor Amulya Kumar Acharya sir, namaste. From Fakir Mahan University, Dr. Shati Lekha Mahato from uh, Ranchi, Sarla Birla University, Dr. Mousumi Baral from Calcutta, or so many faculties is being there in our platform in this session. So I'm requesting you, sir. We don't want to lose our time from this fruitful बिल्कुल session and very interesting session. We hope. So I'm requesting you to deliver your lecture in our श्योर सर 167th episode of the Boitaki. Please, sir. या थैंक यू सो मच आई होप आई एम ऑडिबल आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी Yes, sir. Yes, sir. Clearly, sir. Thank you so much for that. For first of all, thank you so much, Tanmay ji, for inviting me to share the little I know. Um, Actually, it would be nice if you all are comfortable, you can turn on your cameras. Otherwise, it's like talking to white walls. और मैंने कोशिश किया है कि मेरे प्रेजेंटेशन को मैं इंटरैक्टिव करूं सो दैट आप सभी को मजा आए एंड देन जो थोड़ा बहुत मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं. आई वाज इन्फॉर्म्ड कि मैं इंग्लिश एंड हिंदी मिलाकर बात करूं. आई can understand Bengali, but I am not very fluent in Bengali. फिर तो Uh, कपिल शर्मा शो no, अगर no, मैं no, बंगाली में no problem, sir. No problem. okay. So basically what I have for you all today is a presentation that I make, like I have for you all. I promise I will not take very long, and I keep the presentation so that we can actually have a discourse. Uh, can you all see my screen? Yes, sir. Properly. Yeah, great. So the idea for today's presentation is basically to inform and create a discourse, um, basically from my own experience. So अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं, so I'm associate professor in Aral Thimphu College, भूटान में एक college है हमारा, उस पे मैं पढ़ाता हूँ. I'm a business faculty. For a very long time, I was heading my department, business department. But then, from last 2 years, I decided to step down and then
focus on my own growth and career and then learn more. So now I'm just serving as a teaching faculty. इसके साथ साथ हाल फिलहाल में मैंने एक कंपनी शुरू की है, which is known as AI Lopens. It's a teaching learning platform. That is basically me. Apart from this, I also am very keen in training people related to accounts, finance. I provide consulting services. I help small businesses to make strategies on how to grow, how to expand, and then accounts के काम में देखता हूँ. इसके अलावा I also am very keen towards training people for various entrepreneurial platforms जहाँ पर वो pitch deck बनाने में मैं उनकी help करता हूँ. I help entrepreneurs on how to scale. I help entrepreneurs on how to get funds for their business. So that's basically me. And then maybe by the end I'll also share you my LinkedIn profile, और फिर हम किसी और जगह connect कर सके. Yeah, maybe if Sarkar finds my presentation interesting, maybe we can have some more sessions in future, maybe in a workshop model, because today the presentation is mostly designed as a not lecture, but basically the little I know, I basically want to share and inform. So basically this is what I have for you all to present. I'm basically trying to show you AI अभी क्या चल रहा है, education sector में क्या चल रहा है, how can we better prepare ourselves as teachers and as young professional and as student, what we can expect, how we can grow and develop, and then what are some of the things that we need to be careful about. So basically we can start with a small अगर आपकी permission हो तो I wanted to actually do a small quick survey. So I'll just request all of you to आप लोगों ने आहा स्लाइड्स के बारे में सुना है? मेंटीमीटर मेरे ख्याल से आई थिंक एवरीबॉडी ऑफ यू हैव सीन मेंटीमीटर, बट आहा स्लाइड अगेन ये एक एआई पावर्ड टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज कर सकते हैं. It's completely free. Up to 50 people can actually register on this at a go. और इसीलिए मैंने दो बनाया है, एक मेंटीमीटर में है और एक हमारे आहा स्लाइड्स में है. तो इस पे अगर आप फ्री करते हैं तो आपकी क्लास काफी इंटरैक्टिव हो सकती है. आप इससे क्विज बना सकते हैं, आप इससे यूज करके आप अपने क्लासेस में टूल्स ले सकते हैं जैसे अभी मैं कर रहा हूँ. I'll just basically share this and then maybe the top 50 who are interested could quickly fill this out. So अगर आपके पास फोन है आप QR कोड यूज कर सकते हैं या फिर आप आहा स्लाइड पे जाके आप ये कोड डाल सकते हैं. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Clearly, sir. Yeah. जी. क्या आप लॉग इन कर पा रहे हैं इस पे? या फिर मैं ऐसा करता हूँ, I'll quickly share with you the link. मैं चैट पे आपको एक लिंक भेज देता हूँ और आप Okay, उस sir. पे ज्वाइन कर सकते हैं. Perplexity अभी I don't know if you all know, अगर आप एयरटेल यूजर्स हैं तो आपको 1 साल का प्रो वर्जन ऑफ Perplexity आपको मिल जाता है. और आप Perplexity को यूज करके आप बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं. यू कैन डू अ वेरी गुड रिसर्च और ये बहुत हेलुसिनेट नहीं करता जो कि ChatGPT की बहुत बड़ी लिमिटेशंस हैं.
Um, सर किसी ने जी. एक मैसेज भेजा है, लिंक प्रॉपरली डज नॉट वर्किंग। Oh, okay, okay, okay. Let me try again. एक second. This is the sad part of the technology. जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब ये नहीं चलता। अ, एक बार आप फिर से ट्राई करें। सर एक्चुअली सर्वे फॉर्म में कितने सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। नहीं, इसमें 2 है, लेकिन मैं चाह रहा था ये एक, अदरवाइज़ पहला वाला है बेसिकली कि हमने किस-किसने एआई यूज़ किया है। अच्छा। सो डीपसीक है, ब्लिंक है, चैट जीपीटी। एक और मिनट वेट करते हैं एंड देन मे बी we can, I can just ask randomly अगर आप शेयर करना चाहें। Okay, I can see some people coming. I think आपको दिक्कत हो रही है इसमें लॉगिन करने के लिए। ऑलराइट, बेसिकली से एक मोटा एक ओके, आई थिंक वी हैव सम मोर। या जेमिनाई, वेरी गुड। और जेमिनाई का भी अभी स्टूडेंट के लिए subscription free है। तो all the students, I'll request you to take Gemini and Perplexity subscriptions, the free pro version subscription for free. All right. So maybe we can continue with our presentation. Um, I think हमारे बीच ऐसा कोई नहीं है जो who is totally naive, मतलब जिनको एआई के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। I'm sure we all have, if अगर हमने यूज भी नहीं किया हो, so I'm sure we all have tried एआई, चैट जीपीटी हम सब ने यूज किया होगा, मेटा जो अब हमारे व्हाट्सएप में भी है। सो एआई इज फॉलोइंग अस एवरीवेयर, अगर हम एआई चाहें भी नहीं यूज करना, बट एआई इज एवरीवेयर, गूगल पे भी आ गया, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, फोन्स पे है। सो आई एम श्योर वी मस्ट हैव यूज्ड एआई इन वन और द अदर फॉर्म्स। तो मैं आपको अपनी कहानी बताऊं, मुझे एआई अराउंड 2002-3 के टाइम पे मुझे जब ये पता लगा एआई के बारे में, जो मैंने पहला काम किया था एआई के साथ, वो था अपनी कुलीग के लिए एक गाना लिखना। I was so mesmerized about what AI can do. However, in that meeting, just meeting में हम थे, in that meeting, all we were discussing about, oh, अब क्या होगा? What if students stop learning? What if students stop thinking about AI? क्या अब स्टूडेंट को हम असाइनमेंट दे भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो सारे एआई से ही करके लेकर आएंगे? What if हमारी जॉब चली जाएगी? Is it ethical to use? And I'm sure in your university, in your own workspace also, you are having this issue where we have this complete digital divide. There is one group who is totally in favor of using AI, and there is one group who is totally against using AI. And we all, even in my university, even now, we have this digital divide where there is one group of faculties who are taking the initiative to learn, to use, and there's one group of faculties who are totally against. And I'm sure in our group also, there are a few people who are in the same dilemma. And then again, some of the fears that I had was, is it safe to use? क्योंकि जब हम कहते हैं कोई चीज फ्री है, लाइफ में कुछ चीज फ्री नहीं होती। If we are not paying anything to someone, it basically means we are actually being the payment. जैसे हम Facebook यूज करते हैं, they use all our data, वैसे ही अगर हम चैट जीपीटी हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम चैट जीपीटी को ट्रेन कर रहे हैं टू परफॉर्म बेटर। हम हर दिन जब उसके साथ काम करते हैं, कोई भी फ्री एआई टूल के साथ में, वी आर बेसिकली ट्रेनिंग एआई। सो इससे हमारी काफी सारी डेटा चले जाते हैं उनके पास, और वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है। दैट इज नो लॉन्गर आवर्स, वो अपने हिसाब से यूज करते हैं। सो the safety concern is definitely there, and I'm sure आज जो भी हमारे पास बैठे हैं, there are many who agree with me कि क्या ऐसा तो नहीं कि I have missed a bus, क्योंकि एक टाइम आया था जब क्रिप्टो करेंसी was big thing, बिटकॉइन was there, और बहुत सारे हम में से ऐसे हैं जिन्होंने शायद ये चलेगा नहीं चलेगा, इसमें ही हमने वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। अगर तब हमने खरीदा होता बिटकॉइन $1-2 में और $1-2 में, we would have all become millionaires by now. और ये एक दूसरा मौका है हमारे लिए। लेकिन कई सारे लोग ऑलरेडी इससे पैसा बना चुके हैं, कई सारे लोगों ने अपने करियर पे ऑलरेडी they have taken a leap in their career, and then there are people who I'm sure are quite overwhelmed, और उनको लग भी सकता है कि शायद
this is one opportunity that I may have missed yet again. So these are some of the fears, and I don't know how many of you do relate with me with these fears. अगर मैं आपको बताऊं कि डर अपनी जगह है, वी ऑल आर वरीड अबाउट क्या पता वी विल हैव दिस जॉब और नॉट. हम मार्केटिंग सिखा रहे बच्चों को, वी आर टीचिंग देम हाउ टू डू अकाउंटिंग, बट we never know if these jobs will be available in future. We don't know what we are teaching is still relevant or is still going to be relevant in coming times. So let me give you an overview of the new landscape that we have. AI क्या कर रहा है अभी मार्केट में, what we expect is happening in the market today, which I'm sure you already know. This is from one of the research that I found online, which is Engalia. इसमें basically हम देखते हैं कि हम चाहें या ना चाहें, बेसिकली अराउंड 60% ऑफ टीचर्स जो हैं वो ऑलरेडी एआई को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने टीचिंग रेगुलर टीचिंग प्रैक्टिसेस में, ऑलमोस्ट 60%. एंड आई एम श्योर this data is quite low. There may be more that is using. And there are teachers who are using AI for administrative tasks. We all know that we teachers are burdened with not only teaching, but a lot of administrative tasks. Email likhna, reports likhna, बहुत सारे काम, lesson planning, research करना, materials बनाना, copies check करना. We can actually use AI to reduce our time and then use that time for some other productive work. And then we also know, I'm sure our students will agree, that almost 89% of the students admit of using ChatGPT, which I again feel that the number is less. I'm sure. I'm quite sure that more than 100%, almost everybody would be using AI for writing assignments, writing homeworks, and then we don't know if they are using it correctly. और अगर हम AI के एजुकेशन मार्केट को अगर हम देखें, it is now $7.57 billion US, और ये एक अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इतनी बड़ी 46% की ग्रोथ हमने देखा है इन जस्ट लास्ट 1 year. 2024 से 2025 में the industry has boomed with 46% and it is only going to grow big. और हम ये भी देखते हैं कि एजुकेशन जो सेक्टर है that has used AI the most, the highest adoption rate of AI in any industry is actually education industry. हम टीचर्स और जो हमारे एजुकेशन सेक्टर है वहां पर हमने सबसे ज्यादा तेजी के साथ एआई को इनकॉर्पोरेट करते हुए देखा है. और ये जो हमारा एशिया पैसिफिक रीजन है, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एआई एजुकेशन मार्केट, और यहाँ पर हमने तकरीबन 48% की ग्रोथ को नोटिस किया है. तो हम ये इस डेटा से हम ये समझ सकते हैं कि एआई एजुकेशन में भले हम डरे, हम भागे या फिर हम ना सीखना चाहें, बट इट इज देयर एंड इट इज हियर टू स्टे. सो अब सवाल आता है कि हम क्या कर सकते हैं, राइट? और जिन लोगों ने एआई को यूज किया है, एंड आई एम श्योर यू विल अग्री विद दीज बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एआई, कि सबसे पहले इफ वी आर एबल टू यूज एआई, हम अपनी लर्निंग को पर्सनलाइज कर सकते हैं, जो कि एआई की सबसे आउट ऑफ मेनी ग्रेट बेनिफिट, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग बेनिफिट ऑफ यूजिंग एआई फॉर टीचिंग लर्निंग इज दिस पर्सनलाइज लर्निंग. अगर मुझे लेक्चर पसंद है, आई कैन गेट अ लेक्चर. अगर मुझे वीडियो देखकर सीखना पसंद है, आई कैन मेक अ वीडियो एंड लर्न. अगर मुझे चाहिए कि कोई मुझे बच्चों की तरह समझाए, आई कैन डू दैट. अगर मैं चाहूं कि नहीं, मुझे गाने की तरह इसको सीखना है, या फिर मुझे इसको एक्टिविटी के साथ सीखना है, मुझे किस तरीके से सिखाएं आप, तो वी कैन डू दैट एज अ लर्नर. वी कैन एक्चुअली डू दिस. एंड रिसर्च में यही देखा गया है कि अराउंड स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है पर्सनलाइज लर्निंग के थ्रू, एआई के पर्सनलाइज लर्निंग के थ्रू 30% इस पे बढ़ोतरी देखी गई है. सिमिलरली अगर हम AI एनहांस एक्टिविटी को यूज करते हैं, तो टेस्ट कोर्स में तकरीबन 54% की ग्रोथ उनके टेस्ट स्कोर्स में हमने देखा है. और अगर हम देखें कि ये एक्टिव जो AI एनहांस, जैसे कि हम रोल प्लेस करते हैं, तो जैसे मैंने अपने प्रोग्राम्स में बिजनेस में रोल प्लेस केस स्टडीज बहुत होता है. तो ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को एक पेपर देते हैं, उस पर केस लिखा होता है, वो केस को पढ़ते हैं, उसके नीचे क्वेश्चंस होता है, कर देते हैं. लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने पूरे के पूरे केस को एक वीडियो बनाकर बच्चों को दिखाया कि अब देखो ये वीडियो, एंड देन दे गेट इमर्स इन इट.
उसके बाद में मैंने उनको क्वेश्चंस को ही फ्लिप करके मैंने उनको रोल असाइन कर दिया कि चलो अगर आप मार्केटिंग मैनेजर हैं तो हाउ वुड यू एक्चुअली रिएक्ट इन दिस सिचुएशन. सो स्टूडेंट्स गेट मोर इन्वॉल्व. वो सेम चीज पे वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हम उन पे देखते हैं, वो ज्यादा सीख पाते हैं. हाउएवर हर कोई इस तरीके से नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर हम सही तरीके से एआई को यूज करें टीचिंग लर्निंग के लिए तो उस पे बच्चों की लर्निंग्स पे हम काफी कुछ देख सकते हैं. और अगर हम एआई पावर्ड एक्टिविटी को यूज करते हैं तो उससे बच्चों में एंगेजमेंट हम ज्यादा देख पाते हैं. और अम, मुझे अपनी जॉब बहुत अच्छी लगती है. आई लव टीचिंग. हाउएवर देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई हेट अबाउट माय जॉब. द फर्स्ट थिंग दैट आई टोटली हेट अबाउट माय जॉब इज इनविजिलेटिंग. मुझे इनविजिलेशन, एग्जाम इनविजिलेशन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन करना पड़ता है. और दूसरा है वो है ग्रेडिंग. मुझे ग्रेडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है. बट स्टिल यू हैव टू डू. और ग्रेडिंग में बहुत टाइम लगता है. कई बार इफ आई एम अ स्टूडेंट एंड आई हैव गिवन माय वर्क टू माय फैकल्टी, मेरे टीचर्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो मुझे एक डिटेल्ड फीडबैक दे दे. तो वो मुझे ऊपर ऊपर से बता देंगे कि चलो आपके काम में ये सारी कमियां हैं. हाउएवर इफ यू आर यूजिंग एआई तो ये बहुत अच्छी तरीके से मुझे अपनी गलतियां सिर्फ बताएगा नहीं. वी कैन ऑल्सो ट्रेन एआई टू टीच मी हाउ टू इनकॉर्पोरेट दिस फीडबैक. मैं क्या और क्या क्या कर सकता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट एन ऐसे. मैं ऐसे अपलोड कर दूंगा चैट जीपीटी पे या फिर किसी भी एआई टूल पे, और वहां पर प्रॉम्प्ट डाल के आई कैन आस्क चैट जीपीटी टू फर्स्ट इवेलुएट माय वर्क, और वो मुझे बताए कि मुझे कहाँ और कैसे सीखना है. वो मुझे ये भी बता सकता है कि मेरे को कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है टू इम्प्रूव माय राइटिंग स्किल्स, विच इज अगेन एन अमेजिंग फीचर ऑफ एन एआई. और हमने ये भी देखा है कि अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हैं, अगर हम एआई को पर्सनलाइज लर्निंग के लिए यूज करते हैं तो अटेंडेंस में भी काफी इंप्रूवमेंट हमने देखा है. ये तो बात हो गई कि एआई क्या कर सकता है. आई एम श्योर जो आज friends who are joining, professors who are joining, and I'm sure there are other things that AI must have done. If anybody would like to share any interesting, सर um, सर सॉरी टू yes, इंटरप्शन. yeah, किसी ने हैंड रेज किया है, चंदन हजरा नाम okay, का. उसका कुछ okay, क्वेरीज है शायद. जी जी जी, प्लीज बताएं. चंदन हजरा प्लीज सर. Yes, Chandan, please go ahead. अगर इफ यू आर अ लिटिल हेजिटेंट सवाल पूछने में, आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं. अगर यहाँ नहीं तो मैं आपको डेफिनेटली आई रीच बैक टू यू एंड देन आंसर योर क्वेरी. जब तक चंदन शायद इज सर मास्टरिंग. गलती से हो गया उसका. सर जी. बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हम्म. अ, Gee. Is there anyone who would like to share their best practices? What is but what is one benefit that they have seen after using AI in their class, in their teaching learning? Or if there are students who are joining with me, if you can tell me one way you have used AI and have found it to be absolutely a game changer. Anyone? नहीं तो एक सेशन बहुत बोरिंग हो जाएगा. Anybody would like to share? All right. Yes. Is there anyone? और मैं आपको एक और बात बता दूं, मुझे बोलना बहुत पसंद है. और अगर आप मुझे अलाउ करें मैं 2 दिन बात कर सकता हूं. तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल. आई कंटिन्यू विद माय प्रेजेंटेशन. तो हमने व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एआई. एआई को यूज करके हम क्या क्या बेनिफिट्स देखते हैं. लेकिन देयर इज वन मोर फ्लिप साइड. अगर हम देखें इस पे तो हम देखते हैं कि एआई इतना भी खूबसूरत नहीं है जितना दिखता है. राइट. एंड दिस इज व्हाई योर टीचर्स आर वरीड. दिस इज व्हाई एवरीबॉडी अराउंड द वर्ल्ड इज वरीड. और जब ये एमआईटी की रिसर्च आई थी पिछले साल 2024 में, ये जब रिसर्च आई थी जिसका ये टॉपिक था योर ब्रेन ऑन चैट जीपीटी, इन्होंने एक रिसर्च किया था जिसपे इन्होंने ये देखा था कि एआई को अगर हम यूज करते हैं तो इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है. और इसके बहुत डरावने जो इम्पैक्ट है वो ये था कि इट रिड्यूसेस न्यूरल कनेक्टिविटी. हमारे न्यू न्यूरॉन्स नहीं बनते हैं बिकॉज वी गेट टोटली डिपेंडेंट ऑन एआई. हम सोचना ही छोड़ देते हैं. हर छोटे बड़े काम के लिए हम एआई पे भागते हैं. एप्लीकेशन लिखना है एआई पे.
रखो, ये करना है एआई पे करो, वो करना है एआई पे करो। मतलब हम एक सेंटेंस भी सही से नहीं लिख पाते। एंड दिस इज अ वेरी बैड एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग एआई। और पेंसिल्वेनिया पे एक रिसर्च किया गया था जहां पर उन्होंने ये देखा कि जो बच्चे एआई को यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, स्पेशली मैथ्स के लिए, उनकी परफॉर्मेंस खराब थी। Their performance was worse than those who performed in a traditional, who practiced using a traditional way. Again, there are many research जिन्होंने एआई के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को स्टडी किया है और उन्होंने ये देखा है कि जब हम एआई को यूज करते हैं बिना सोचे समझे, बिना किसी सही डायरेक्शन के, बिना प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग के, तो उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट? सबसे बड़ा है ओवर रिलायंस। हम हर छोटी बड़ी चीजों के लिए एआई पे निर्भर होते हैं। जो काम हम बिल्कुल बिना एआई के मदद के भी कर सकते हैं, हम वो एआई पे छोड़ देते हैं। हम बिल्कुल भी क्रिटिकली नहीं सोचते। हमने एआई को कहा कुछ लिखने के लिए, वो उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, डायरेक्ट हम वो सबमिट कर देते। वी डू नॉट कोलैबोरेट, वी डू नॉट इंप्रूव द वर्क ऑफ एआई, बिकॉज एआई एट द एंड ऑफ द डे इज जस्ट अ मशीन, राइट? ये बस एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला पे चलता है। जो डेटा इसके पास है उसी को वो यूज करता है, जो इनको प्रोसीजर दिया है, और उसी को यूज करके, उस फॉर्मूला को यूज करके वो एक प्रोडक्ट बना कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को ही खत्म कर देती है अगर हमने एआई को ब्लाइंडली यूज किया। और अगेन, एकेडमिक डिसऑनेस्टी बहुत बड़े पैमाने पे है। हम एआई के चीजों को अपना बनाकर आगे भेज देते हैं। और एक बहुत बड़ी रिस्क, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कि देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड एज फ्री। कुछ भी चीज फ्री नहीं है दुनिया में। अगर हम एआई पे कुछ इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन लीक हो गई, खत्म। एंड स्पेशली इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर इंफॉर्मेशन बहुत कॉन्फिडेंशियल है, और अगर आपने उन इंफॉर्मेशन को एआई पे डाल दिया तो फिर आपका काम गया, खत्म, वो इंफॉर्मेशन ब्रीच हो गया। और एक बहुत बड़ा जो हम अभी देख रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, आप कहीं पर भी जाओ, हर एक दिन एक नया एआई टूल आ रहा है। एआई से आप ये करो, एआई से आप वो करो, एआई से आप पैसे बनाओ, एआई, आज एआई के आप भूल जाओगे, नो, देयर आर न्यू एवरी डे, देयर इज अ न्यू कैची टूल कि दिस एआई कैन कंप्लीटली डू दिस एआई कैन डू दिस। एक चाइना ने ये लॉन्च कर दिया, चाइना। तो आप कब तक अपने आप को रेलेवेंट रखोगे? हाउ मच इंफॉर्मेशन, क्योंकि हर एक दिन एक 10 नए एआई टूल आते हैं, तो आप एक टाइम के बाद में आप थक जाते हैं इनको देखे देखे। सो दिस इज नोन एज डिजिटल फैटीग। एंड देन टेक्नो स्ट्रेस भी हो जाता है, बिकॉज आपको लगता भी, अगर आपके दोस्त ने कोई एक नया एआई टूल सुना, अगर आपको वो नहीं पता, तो यू फील कि शायद मैं ये रेस पे पीछे रह रहा हूँ, राइट? और बहुत इंपॉर्टेंट अभी एक चीज निकल के आ रही है। वैसे ही फेसबुक, इंस्टाग्राम के वजह से हम अपने करीबी लोगों से दूर हो रहे हैं, और दूर के दूर दोस्तों से हम करीब हो रहे हैं, और हम कभी उनसे मिल भी नहीं पाते। तो डेफिनेटली हम, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और एक डिक्लाइन इन सोशल इमोशनल स्किल्स भी हो गया, क्योंकि हम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। पहले अगर आपको पेंटिंग बनाना हो, आप सोचते थे। अगर आपको कोई फोटो खींचनी, आप खुद करते थे। अब जेमिनाई में आपने देखा होगा वो बनाना प्रॉम्प्ट जो भी बहुत चला हुआ है, आप फोटो डालिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है, पंडाल घूमने की जरूरत नहीं है, आपके फर्स्ट क्लास फोटोज बनकर रेडी हो जाते हैं। तो you know, it is actually killing our emotional skills. हम अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। अगर आपको एक पोएम लिखना है, पहले एक पोएम लिखने के लिए आप अपने भावों को बाहर निकालते थे, बट नाउ एआई कैन डू दैट वेरी ब्यूटीफुली। तो आप अपने आप को भी, आपको पता भी नहीं कि आपको एक्सप्रेस कैसे करना है। सो दीज आर फ्यू नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो कि रिसर्च ने बताया है। However, there's a caveat here. अगर I think we all do understand कि एआई की पोटेंशियल इज वेरी वेरी वास्ट। एआई के पास बहुत है, हम कुछ यूज करके हम बहुत अमेजिंग कर सकते हैं। हाउएवर, अगर हम बिना सोचे समझे एआई को अगर हम यूज करते हैं, बिना उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेके, बिना उसकी समझ लेके, तो देन डेफिनेटली ये जो रिसर्च ने जो प्रॉब्लम्स हाईलाइट की है वो 100% करेक्ट है कि इट विल डेफिनेटली अंडरमाइन आवर क्रिएटिविटी। हमें सोचने समझने की शक्ति हमारी खत्म हो जाएगी, एंड डेफिनेटली आवर वेलबींग इज आल्सो एट रिस्क। सो बेसिकली जो मैं अपनी बात रखना चाह रहा था वो ये है कि एआई इज हियर टू स्टे।
एआई इज हियर टू स्टे, एआई की पोटेंशियल बहुत लिमिटलेस है, और अभी हम जो देख रहे हैं ये बहुत, but we can say this is the tip of the iceberg. There's a lot to come. Every day there's something new coming. और अगर हम इसको सही से नहीं सीखते हैं, टाइम से नहीं सीखते हैं, इसका सही इस्तेमाल नहीं सीखते हैं, तो हो सकता है कि जो रिसर्च ने बोला है वो बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो नाउ मे बी वी कैन take our discussion towards this कि as a teacher why must we learn AI? As a teacher हमें AI सीखने की क्यों जरूरत है? Why we should? क्योंकि हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं एक नए फ्यूचर के लिए। एंड फ्यूचर में एक रिसर्च है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ये बताती है कि बाय 2030 70% जो हमारी जॉब है वहां पर एआई लिटरेसी बिल्कुल कंपलसरी होगी। और जो भी हमारे प्रोफेसर्स हैं आज, दे विल ऑल अग्री कि पहले हम कंप्यूटर स्किल्स अपने रेज्यूम्स में लिखते थे। हम कंप्यूटर्स जब नई नई आई थी तो हम सोचते थे कंप्यूटर ट्रेनिंग हमें जरूरत है, हम प्राउडली लिखते थे। लेकिन अगर हम जॉब में अब जाते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड, हर किसी को ये है कि आपको कंप्यूटर आना ही चाहिए, इट्स अ बेसिक स्किल्स। या आप स्पेसिफाई नहीं करते आजकल रेज्यूमे कि मुझे आता है। अब वो चीज, जैसे अगर कोई एक नई सॉफ्टवेयर है जो आपको आता है, आप वो मेंशन कर सकते हो, लेकिन बेसिक कंप्यूटर चलाना सभी किसी को आना ही चाहिए। सो उसी तरीके से अब एआई जो है ये हर एक जॉब का एक इंटीग्रल पार्ट होने वाला है। एंड आई एम श्योर बाय नाउ वी ऑल हैव सीन हाउ एआई इज बीइंग नाउ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। हम मार्केटिंग के लिए किस तरीके से एआई को यूज करते हैं, हेल्थ में हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, फाइनेंस में जो कि एक बहुत ल्यूरिकेटिव एरिया है। जिन लोगों को फाइनेंस के बारे में ए बी सी डी भी नहीं पता है, दे कैन एक्चुअली, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग एंड मेकिंग मिलियंस। जिन लोगों को कोडिंग के बारे में नहीं पता, वो वेबसाइट्स बना रहे हैं, वो एप्स बना रहे हैं, वो डिजिटल बिजनेसेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं, दे आर डिजाइनिंग। एंड देन डेफिनेटली एजुकेशन में तो है ही है। तो इसलिए इफ वी वांट टू टीच द फ्यूचर लीडर्स, फ्यूचर प्रोफेशनल्स, हमें उनको सिखाना होगा एआई कैसे यूज करा जाए। और ये तभी मुमकिन है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी एज अ टीचर learn how to use that properly. Only then we can teach. And then we need to prepare our students on how to use, how to work in an AI driven workforce. And then अगर हम नहीं सिखाएंगे, अगर हम सोचते हैं कि चलो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटीज में नहीं है, तो आपको मैं ये बिल्कुल पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप नहीं सिखाएंगे, कोई ना कोई आपके बच्चों को जरूर सिखाएगा। तो आपसे वो अपॉर्चुनिटीज अब चली जाएगी, कोई और सिखाएगा आपको। और जो लोग डर रहे हैं कि क्या एआई इज गोइंग टू टेक माय जॉब, सो एआई नहीं लेगा आपकी जॉब, बट समवन हु नोज एआई विल टेक योर जॉब, राइट? अगर आप मान लीजिए 2 लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, एक वो है जो कि बहुत अच्छा एकेडमिक्स में है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। दूसरा बंदा है जिस वो एकेडमिक में भी बहुत अच्छा है, वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस बंदे को पता है हाउ टू यूज एआई और ऑप्टिमाइजेशन है इसके पास। तो आप किसको हायर करेंगे? डेफिनेटली उसको जिसके पास में कुछ ज्यादा है शेयर करने के लिए। सो डेफिनेटली you'll hire someone who knows how to work with AI. So जो लोग डर रहे हैं कि क्या AI मेरी नौकरी खा जाएगा, उनके लिए ये मैं बात बता दूं कि AI नहीं लेगा आपकी जॉब, लेकिन वो आदमी जरूर ले जाएगा आपकी जॉब जिसको AI यूज करना आता है। So that is why we as teachers must work, must invest in learning AI so that we can stay relevant and we can stay future ready. बिकॉज हमारी जिम्मेदारी कुछ थोड़ी ज्यादा है, हमें खुद सीखना नहीं है, हमें सिखाना भी है। सो दैट इज व्हाई आवर जॉब एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्वाइट हाई, राइट? और डेफिनेटली क्योंकि अभी, क्योंकि मैं खुद टीचर हूं, मुझे पता है कि एज अ टीचर हमारी जॉब 9 to 5 नहीं होती है, इट इज 9 to 9। आप पूरे मतलब दिन शुरू करते हैं, रात दिन पूरा एक। आपको अगर ग्रेडिंग नहीं हुआ, आप घर पे ग्रेडिंग लाइए, कीजिए, लेसन प्रिपेयर नहीं हुआ आप कीजिए, छुट्टी नहीं, ये नहीं, आपको हर हमेशा काम करते रहना है। और अगर आप एआई को यूज करते हैं सही तरीके से, तो यू कैन एक्चुअली सेव अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने वो टाइम सेव किया है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बनाने के लिए।
मेरी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हुई हैं, मेरे बच्चों की एंगेजमेंट बहुत अच्छी हुई है, और मेरा टाइम बहुत ही कम लगता है इन सब चीज़ों को करने के लिए, व्हिच आई कैन डेफिनिटली शेयर द सेम लर्निंग विद यू ऑल। अब टीचर्स के लिए जस्ट माय एक्सपीरियंस, जब मैंने स्टार्ट किया बच्चों को पढ़ाना, सो हाउ डिड आई एक्चुअली गो अबाउट, क्योंकि देखिए अब एआई इंफॉर्मेशन क्रिएट कर देती है, एआई बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है। अगर आप कहें एआई को एक ऐसे लिखने के लिए, और आप अपने स्टूडेंट को कहिए ऐसे लिखने के लिए, आप एआई बहुत बेहतर ऐसे लिखेगा। लेकिन एआई केवल इंफॉर्मेशन देता है, वो हमारे कमांड पे चलता है। सो एज अ टीचर नाउ वी नीड टू नर्चर, बच्चों पे हमें सिखाना है कि वो जजमेंट कैसे करें, वो क्रिएटिव कैसे बने, हाउ कैन दे यूज एआई एथिकली, हाउ कैन वी बिकम कॉग्निटिव कोचेस, हम सोचने समझने की और जजमेंट की जो स्किल्स हैं वो बच्चों में हम कैसे डेवलप करें। क्योंकि देखिए एआई रिपीटेटिव टास्क बहुत अच्छा करेगा, जो चीज हम प्रिस्क्राइब कर सके कि इस काम को करने के लिए 10 स्टेप्स हैं, और अगर वो रूटीन स्टेप्स हैं, तो वो एआई से बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि एआई बनाया ही ऐसे गया है कि अगर आप उसको एक स्टेप लिख कर दें कि आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट आएगा, एआई काम वो बहुत अच्छा करता है। लेकिन एआई जो नहीं कर सकता है वो है एक नई नॉलेज क्रिएट करना। एआई कैन नॉट थिंक फॉर देमसेल्व्स। तो ये हमें सिखाना है, जो काम यूनिक है वो नहीं कर सकता एआई, एंड दैट इज वेयर मेटाकॉग्निटिव जो स्किल्स हैं वो हमें अपने बच्चों में डेवलप करनी है, एथिकल स्किल्स हमें अपने बच्चों में डेवलप करनी है, और हमें वो चीज बच्चों को सिखानी है जो एआई नहीं सिखा पाएगा। एंड अगेन हमें बच्चों को सिखाना है, वी हैव टू टीच आवर young generation, our students, the future leaders, about how to work in collaboration with AI. हमें AI के साथ में लड़ाई नहीं करना है, या फिर को AI से काम नहीं करवाना है। We have to work in collaboration with AI, right? और यहाँ पर I think the job of a teacher becomes essential. जो faculties, जो teachers fluent है AI में, they can actually design assessments जहाँ पर बच्चे AI को use करके काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करूं, मैं जब एंटरप्रेन्योरशिप एक मॉड्यूल है मेरा, जब मैं वो पढ़ा रहा था, मैंने अपने बच्चों को बोला कि आप एआई को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल एआई को यूज कीजिए। बच्चे बहुत खुश, उनको लगा कि अब उनको अलादीन का चिराग मिल गया। और मैंने उनको एक बहुत सिंपल असेसमेंट दिया, मैंने उनको बताया कि आप मुझे एक मैंने उनको एक प्रॉब्लम दिया, और वो प्रॉब्लम भी बड़ा सिंपल था। मैंने उनको वॉलेट का प्रॉब्लम दिया, मैंने बोला कि देखिए वॉलेट हम सब यूज करते हैं, हम सबके पास वॉलेट है, अब आप एक नई टाइम का एक वॉलेट बनाइए, क्रिएट अ न्यू, इमेजिन अ न्यू वॉलेट। आप एआई को यूज कीजिए और मुझे एक नया प्रोडक्ट डिजाइन दीजिए यूजिंग एआई, लेकिन मुझे फीचर्स उसमें ऐसे चाहिए जो हमने देखा सुना ना हो, जो कि रेगुलर अभी ना हुआ हो, हमें फ्यूचरिस्टिक कुछ चाहिए। और बच्चों ने एआई को यूज किया, एआई को एक प्रॉम्प्ट डाला, एक बहुत सुंदर सा वॉलेट बनकर सामने आया, और बच्चों की ग्रेडिंग थी ओनली 50, क्योंकि एआई ने उनको वो सब फीचर्स दिए जो कि ऑलरेडी है, क्योंकि वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में चलता है। एंड देन मैंने फिर बच्चों को बताया कि अगर आपको कुछ नया चाहिए जो कि अभी तक आया नहीं है, यू हैव टू फेच दैट इंफॉर्मेशन इनसाइड एआई। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल मास्टर हो गया, आई एम स्टिल लर्निंग हाउ, बट मेरी कोशिश ही ये रहती है कि मेरे सारे असाइनमेंट में मैं एआई को एज अ टूल उनको दूं। जैसे अभी मैं इस साल उनको रिसर्च सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग देम रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो वहां पर मैंने उनको रिसर्च टूल्स के बारे में बताया, जैसे कनेक्टिंग पेपर्स के बारे में बताया, इलिसिट के बारे में बताया, और भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिसके बारे में मैंने उनको बताया, बट बेसिकली दे वर यूजिंग दीज टूल्स इन ऑर्डर टू डू बेटर लिटरेचर रिव्यू। तो वहां पर वो एज अ टूल यूज कर रहे थे, जैसे हम एक्सेल को यूज करते हैं। अगेन हमें खुद सीखना होगा कि कैसे हम, वी नीड टू बी एआई लिटरेट, ताकि हम अवेयर हों कि क्या एआई कर सकता है, क्या एआई नहीं कर सकता है, व्हाट इज एथिकल एंड व्हाट इज नॉट एथिकल, दैट वी विल ओनली नो व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग। जब हम एआई के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आवर कोर मिशन, और बेसिकली माय कोर मिशन इज टू स्टे ह्यूमन इन एन एआई वर्ल्ड। हम एआई के साथ काम करेंगे, एआई इज जस्ट अ टूल। जब टैली आया था, मैं बिकॉज आई एम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, जब टैली नया नया आया था,
हम सबको यही लग रहा था कि शायद अब मेरी नौकरी गई, अब तो टैली ही सब कुछ करेगा, बट नाउ टैली एज अ टूल यूज हो रहा है। काम, अकाउंटेंट्स के काम गए नहीं है और बढ़कर आए हैं, और हम अपने अकाउंट्स जो है, रिपोर्टिंग है, वो और बेहतर हो रहे हैं। Now if I shift the direction towards our students, बच्चों, why should we learn? सबसे पहले, इफ यू डोंट लर्न, इफ यू डोंट वांट टू गेट लेफ्ट बिहाइंड, अगर आप इस एआई की रेस में पीछे नहीं छूटना चाहते हो, आपको आज एंड अभी से एआई पे ध्यान देना होगा और आपको सीखना होगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, अबाउट 70 to 80% ऑफ आवर जॉब्स विल रिक्वायर एआई स्किल। और आप, आई एम श्योर यू माइट बी इंटरेस्टेड टू नो कि ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो मुझे सीखने चाहिए। सबसे पहला जो आपको सीखना चाहिए वह है प्रॉम्प्टिंग की स्किल, कि किस तरीके से आप एआई के साथ बात करें। अगर आप, अभी बहुत फेमस हुआ था नैनो जेमिनाई में, कि आप नैनो बनाने वाले फोटोज आप बनाएं। अगर आप उस पे देखें, आप रील्स पे भी देखते होंगे कि मैं आपको प्रॉम्प्ट देता हूँ, एक प्रॉम्प्ट लगाइए, आपकी फेस अगर आप डालते हो, आपका शायद फेस चेंज होकर आ रहा है। अगर आपके दोस्त प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, उनका फेस बिल्कुल अच्छा आ रहा है, उनकी फोटोज बहुत अच्छी आ रही है। वो इसलिए क्योंकि हमारी प्रॉम्प्टिंग, हम किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, किस तरीके से हम एआई से बात करते हैं, वो मैटर करता है। सो प्रॉम्प्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो हर किसी को पता होना चाहिए। उसके बाद में जो एक स्किल्स जो हम सब निग्लेक्ट करते हैं, वो है इवैल्यूएशन। अगर आपको कोई एआई से आपने कोई रिपोर्ट जनरेट कराई है, एआई से आपने अगर कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट किया है, आपको वो इंफॉर्मेशन इवैल्यूएट करना ही होगा। बिकॉज एआई के पास एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है जिसको हम बोलते हैं हैलुसिनेशन। एआई कभी नहीं कहेगा मुझे नहीं पता। आप उसे कुछ भी कहिए, वो एक गाना है ना, अगर आप कहो दिन है तो हम दिन कहेंगे, रात कहो रात कहेंगे। वो हिसाब है एआई का। एआई इज आफ्टर ऑल अ मशीन जिसको फॉर्मूला करके बनाया है। तो अगर आप एआई के रिजल्ट्स को, अगर हमारे बच्चों ने एक्सपीरियंस किया हो, वो रिसर्च पेपर हम उनको असाइनमेंट देते हैं, वो असाइनमेंट बिना कुछ देखे समझे फैकल्टी को देते हैं, और फैकल्टी तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये असाइनमेंट एआई जनरेटेड है। हमें डालने की भी जरूरत नहीं होती है उसे किसी एआई डिटेक्टिंग टूल पे, देख कर ही पता लग जाएगा कि ये काम जो है ये एआई का है। राइट, आई एम श्योर यू ऑल अग्री विथ मी। सो इसीलिए एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए कि आप एआई के काम को किस तरीके से इवैल्यूएट करें। कैसे पता चले कि ये काम सही है, जो इंफॉर्मेशन एआई बता रहा है, हाउ कैन वी वेरीफाई दैट दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज टू कोलैबोरेट विद एआई। जैसे हम कंप्यूटर को यूज करके काम करते हैं, जैसे हम कैलकुलेटर्स को यूज करके काम करते हैं, उसी तरीके से यू नीड टू सी हाउ कैन वी यूज दिस टूल फॉर योर ओन जॉब। चैट जीपीटी तो चैट जीपीटी है, डॉक्टर्स भी यूज कर रहे हैं, इंजीनियर्स भी यूज कर रहे हैं, क्रिएटिव आदमी भी यूज कर रहा है, टीचर्स भी यूज कर रहे हैं, बट हाउ डू यू यूज इट फॉर योर ओन जॉब? दिस इज द थ्री स्किल्स आई अर्ज आवर लर्नर्स अटेंडिंग टुडे टू एक्चुअली यूज। और अगर आप एआई को यूज करते हैं तो डेफिनेटली यू आर सेटिंग योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम अदर्स। आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको ऑटोमेटिकली मिलती है, एंड इट इज योर टिकट टू स्टेइंग रेलेवेंट। और अगर मैं आपको बताऊं, आई थिंक इन इंडिया दिस इज अ वेरी गुड टाइम, इट्स अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट टाइम। हम देखते हैं कि किस तरीके से दे आर मेकिंग मिलियंस, देयर आर पीपल हु आर मेकिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। पैसा किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच। एआई इज योर गोल्डन टिकट। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि किस तरीके से जो एशिया पैसिफिक मार्केट है हमारा, इट इज लीडिंग इन द वर्ल्ड। इंडिया इतना नहीं कर पा रहा है, लेकिन चाइना आप देखिए हर दूसरे दिन एक नया एआई टूल निकालता है। सो द सेक्टर इज थ्राइविंग। हर एक दिन एक नई जॉब सामने आ रही है हमारे पास में। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट मिस। हर एक दिन एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है विथ इट्स ओन सेट ऑफ प्रोमिसेस। अभी आप पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल बना सकते हैं बिना आप एक प्रॉम्प्ट डाले। आपको बैठना भी नहीं है कंप्यूटर के आगे, आप एक ऑटोमेशन बनाकर डाल दीजिए, एआई आपके लिए काम करता रहेगा, पैसे आपके आते रहेंगे। आप किताब लिखिए। एज अ टीचर्स वी ऑल नो दैट वी हैव, हम एक किताब लिखने में कई बार हमें कई महीने कई साल लग जाते हैं। नाउ यू कैन राइट एन एंटायर बुक इन जस्ट फ्यू आवर्स, फ्यू डेज। मैंने खुद लिखा है, पब्लिश भी हुई है। और और ये जो फील्ड है, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस, आई कैन टेल यू दैट
स्टॉक मार्केट, इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। आपने देखा होगा कि अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन हर किसी के पास में वो नॉलेज नहीं होती। बट वी कैन एक्चुअली यूज एआई, इज एक्चुअली डोमिनेटिंग फाइनेंस नाउ। प्रोजेक्ट्स हैंडल हो रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एआई के साथ ले रहे हैं। तो दिस इज, यू नो, बहुत ग्रोथ हम देख रहे हैं। बहुत सारे हमारे यूथ्स हैं जिन्होंने एआई को यूज करके बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए हैं। सो वी कैन नॉट सिट एंड देन वेट अदर्स गेटिंग रिच। हमें भी अमीर बनना है, so you have to get working right now. Or I don't know if we have Tanmay ji, do we have any one who owns institutions or anyone who is like from the management level with us today? Hello, Tanmay ji. Hello. All right. Okay. So basically, मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊं। आप ये ऊपर एक लोगो देख रहे हो AI Lopins करके, ये एक्चुअली मेरी बिजनेस है। I've started this company around June July, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। एंड देन आई एम आल्सो वेयरिंग द सेम कंपनी का टी शर्ट। तो अभी मैं थोड़ी देर में अपने बिजनेस के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो जब ये कंपनी हमने स्टार्ट किया, एंड व्हेन वी वेंट आउट टॉकिंग टू स्कूल्स एंड, क्योंकि हमने ये देखा कि अभी जो एआई कोर्सेज है वो टीचर्स के लिए बने ही नहीं है। वो सारे हैं कि आप यूट्यूब के चैनल बनाइए, आप वीडियोस बनाइए, लेकिन एज अ टीचर हम क्या यूज करें? हम चैट जीपीटी को किस तरीके से यूज करें? हाउ कैन वी, यू नो, एज अ टीचर हमारे लिए क्या कोई कोर्स है? मार्केट में नहीं था। सो देन वी वेंट आउट इंस्टीट्यूशंस के पास में, हमने उनसे बातें की, हमने उनको बताया कि हमने उनसे एक्चुअली पूछा कि यू नो लाइक वुड यू बी इंटरेस्टेड टू टेकिंग आवर कोर्स। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने बिल्कुल मना कर दिया टू इन्वेस्ट। एंड देन उनकी बहुत बड़ी फियर ये थी कि अगर सारा काम एआई करेगा तो हमारे टीचर्स क्या करेंगे, राइट? वो चाहते हैं कि वो जो लेसन प्लान है टीचर खुद हाथ से बनाए, रिपोर्ट्स खुद हाथ से बनाए, क्वेश्चन पेपर खुद हाथ से बनाए। I don't know why, but I think as an maybe जब हम next time अपने management meeting में बैठे, we must raise these questions to our management कि जो AI है अगर हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमारे कंपनी के पास में, हमारे इंस्टीट्यूशन के पास में पॉलिसी नहीं है AI को किस तरीके से यूज किया जाए, तो हर कोई अपने हिसाब से यूज करेगा। तो inconsistent practice we can see AI being misused, AI being abused, academic dishonesty is definitely there। टीचर्स भी यूज करते हैं, बच्चे भी यूज करते हैं, हर कोई यूज कर रहा है, लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से एथिकल कंसर्न्स हमारे पास आ जाते हैं। हम बच्चों के सेंसिटिव डेटास, बच्चों के रिसर्च, आप सोचिए अगर आपने एआई पे डाल दिया ग्रेडिंग के लिए, तो फिर हो गया वो डेटा तो चला गया सारा, बच्चों की मेहनत पानी में आ गई, राइट? तो डेटा सेफ्टी की एक बहुत बड़ी कंसर्न है। डेटा ब्रीच, मिसमैनेजमेंट, अनइंटेंडेड एक्सपोजर्स टू डेटा, सो दीज आर सम रियल रिस्क। सो इंस्टीट्यूशंस को पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, इंस्टीट्यूशंस को नर्चर करने की जरूरत है एआई अपने एनवायरनमेंट में, ताकि वो सेफली एथिकली इसको यूज करा पाए अपने इंस्टीट्यूशंस में। और अगर if an institution invests in AI, so definitely you will gain more trust among staff, faculty and student। हर कोई यूनिफॉर्मली इसको अडॉप्ट करेगा, एथिकल एआई कल्चर आपके इंस्टीट्यूशंस में डेवलप होगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे बताएं कि उन्होंने एआई यूज किया या नहीं। एज अ टीचर आई थिंक इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू टेल कि चलिए ये मैंने एआई के साथ किया है। जैसे अगर आप ये मेरा प्रेजेंटेशन टेम्पलेट अगर देखें, ये मैंने कैनवा से बनाए हैं। जो लोगो है ये मैंने खुद डिजाइन किया है एआई से। और ये सारे पीपीटी जो टेम्पलेट, जो कंटेंट है, ये बेसिकली मैंने चैट जीपीटी, डीप सीक की मदद से मैंने पूरे प्रेजेंटेशंस को बनाया है। बेसिकली मैं उसके साथ बैठ के और आई क्रिएटेड दिस प्रेजेंटेशन। आई थिंक नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि एआई जरूरी है। एआई के दो पहलू भी हमने देखे। वी हैव सीन द ब्राइट साइड ऑफ इट, वी हैव सीन द not so good side of AI. And then we have also understood that we are at a moment in the history where we can actually learn AI and make our own future, right? So
कहाँ से शुरू करें, वेयर डज दिस जर्नी ऑफ फियर टू फ्लुएंसी एक्चुअली बिगिंस। मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूंगा कि बेसिकली सबसे पहली जो हमारी जिम्मेदारी है, हम अवेयर हों कि एआई क्या कर सकता है, व्हाट एआई कांट डू, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट इन्वेस्ट इन लर्निंग कि एआई क्या कर सकता है, एआई क्या नहीं कर सकता है। उसके बाद वी मस्ट लर्न, हमें सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करें, हम अपने पैसे इन्वेस्ट करें और एआई को सीखें। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, यू यूज एआई, देखिए कि आप किस तरीके से एआई को अपने जॉब में यूज कर सकते हैं। हाउ कैन यू यूज डीप सीक, हाउ कैन यू यूज जेमिनाई, अभी जैसे नैनो बनाना प्रॉम्प्ट्स आए थे। नाउ एज अ टीचर आप सोचिए आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने क्लास में, हाउ कैन वी यूज दिस। जैसे आज ही मैंने अपने बच्चों के साथ पे मैं हर संडे आई डू वॉलंटियर वर्क, मैं बच्चों को मॉरल वैल्यू एजुकेशन देता हूँ फॉर फ्री। तो मैंने बच्चों से पूछा कि व्हाट डू यू सी योरसेल्फ एज, आप अपने आप को बड़े होकर क्या क्या देखना चाहते हो और आप क्या सोचते हो। तो मैंने बच्चों से पूछा, मैंने उनकी एक फोटो क्लिक की और मैंने डाला कि चलिए आप इस फोटो को नैनो बनाना के प्रॉम्प्ट में, जेमिनाई में, मोबाइल से ही मैंने किया। और बच्चों को मैंने बताया कि चलो अगर आप, जैसे मैंने एक बच्चे ने बताया कि मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, तो मैंने उसको दिखाया कि अगर आप फुटबॉल खेलते हुए आप कैसे देखोगे, विनिंग करते कैसे दिखोगे। और एक बच्चा पुलिस ऑफिसर बनना चाह रहा था, तो मैंने वही नैनो बनाना का प्रॉम्प्ट लिया और मैंने उसको बताया कि कैसे आप एक पुलिस ऑफिसर हो जो कि बाढ़ में आए लोगों को कैसे बचा रहे हो, हाउ डू यू सी दैट। तो आप बच्चों के आंखों पे वो स्पार्क देखते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट आई encourage you to do कि जब आप कोई एआई टूल सीखते हो, आप सोचिए कि हाउ कैन आई यूज दिस इन माय जॉब, मैं अपनी मार्केटिंग के जॉब में कैसे यूज करूं, हाउ कैन आई यूज दिस इन कंटेंट क्रिएशन, हाउ कैन यूज दिस इन माय ओन टीचिंग लर्निंग, एंड देन स्टार्ट इंटीग्रेटिंग एआई इनटू योर जॉब। और सबसे बड़ी जो चीज है, जो आई थिंक आई cannot emphasize enough, is evaluate AI output। आप प्लीज AI के आउटपुट को इवेल्युएट कीजिए, क्योंकि AI हैलुसिनेट करता है। स्पेशली आपने, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैथ्स के प्रॉब्लम्स में AI फेल होता है, तो आप देखिए अगर आप उसको कुछ फॉर्मूलाज पूछते हैं, अगर आप उससे पूछे कि चलो इसको सॉल्व कीजिए, वो कर देगा। आप उससे पूछे आर यू श्योर, फिर देखिए वो हर बार एक नया एक्सप्लेनेशन आपको देगा, क्योंकि एआई उस तरीके से बिल्ड ही नहीं हुआ है, राइट। सो वी हैव टू लर्न हाउ टू इवैल्यूएट एंड देन उसकी एथिकली हम कैसे यूज करें। तो बेसिकली अगर आप देखें, ये जो पहला जो डायग्राम है कि हम सोचते हैं, वी थिंक, वी गिव कमांड टू एआई एंड देन एआई गिव्स रिजल्ट्स, एंड देन हम उस रिजल्ट्स के ऊपर बिल्ड करते हैं, हम उसी रिजल्ट्स पे अटक के नहीं रहेंगे, एंड देन वी आर द वंस हु इज गोइंग टू डिलीवर, एआई डिलीवर नहीं करेगा। और यही सेम चीज मैंने चैट जीपीटी से कहा बनाने के लिए, आप खुद देख सकते हैं उसने कोशिश तो की है लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे मैं चाहता था, राइट। सो दिस इज व्हाट, बट इट एक्चुअली सेव्स मी फ्रॉम, मुझे अच्छा इंफोग्राफिक मिल गया, मैं उसको यूज करके अपना प्रेजेंटेशन को और खूबसूरत बना सकता हूँ। सो यस, दैट इज देयर। एंड नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू, क्योंकि देखिए वी आर नाउ इन अ वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम। बहुत हम एक ऐसे टाइम पे है जहां पर हमें अगर कुछ सीखना है तो पैसे हमारे लिए बिल्कुल भी, वी कैन नॉट से ओ मेरे पास पैसे नहीं है सीखने के लिए और एआई के कोर्सेज बड़े महंगे, नो आई कांट डू दैट, वो अब नहीं कह सकते। आई हैव एक्चुअली क्रिएटेड फॉर यू सम फ्री एआई चैनल जहां से आप एआई सीख सकते हैं। जैसे आप अगर देखें एलिसन के कोर्सेज, अगर आप एलिसन के कोर्सेज जाएं, ये मैं आपके साथ में ये सारे लिंक शेयर करूंगा, एलिसन पे जाइए, आपके पास बहुत ब्यूटीफुल सेल्फ पेस लर्निंग एआई कोर्सेज हैं जो आप सीख सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और these certificates are actually recognized by प्रोफेशनल्स। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक एआई का कोर्स किया था फ्रॉम एलिसन, this one, see, this is the kind of certificate that you get। अगर आप पैसे देते हैं तो ये सैंपल निकल के नहीं आएगा, इवन विदाउट पेइंग यू स्टिल गेट अ सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप उसको पैसे देते हैं $10-5, तो आपके पास में एक ई सर्टिफिकेट होगा जिसपे सैंपल नहीं लिखा होगा। बट देन अगर आप नॉलेजेबल हैं तो वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सिमिलरली देयर आर अदर एआई प्लेटफॉर्म्स। ये
यहाँ पर भी आपके फ्री एआई कोर्सेज हैं जिसमें सर्टिफिकेट्स भी हैं आपके पास में, यू एकेडमी की है। उसके बाद में अगर आप देखें, ये हमारे भारत सरकार की है। स्वयं आप अपने एआई क्या कहते हैं मोबाइल से इस पे लॉगिन कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत एआई सर्टिफिकेशन है और ये सारे ही फ्री हैं। इसके बाद अगर आप जाएंगे हार्वर्ड पे, हार्वर्ड आई थिंक हमारे एजुकेटर्स आई थिंक हार्वर्ड पे रजिस्टर्ड होंगे। आई विल रिक्वेस्ट आवर स्टूडेंट्स आल्सो टू रजिस्टर। यहाँ पर भी হুম, बहुत सारे फ्री एआई कोर्सेज होंगे। अगर आप देखते हैं, देयर ওটা आर अ দেখাবে না, लॉट ऑफ फ्री वर्कशॉप्स ওটা दैट यू দেখাবে कैन না। डू। ये हमारे एचपी का भी है जो, और ये मतलब डीप लर्निंग पे आप जाइए स्टैनफोर्ड के वेबसाइट पे जाइए, एंड देन माय फेवरेट ग्रो विद एआई। इस पे आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्री है। जैसे ये है एआई एसेंशियल, ये फ्री है। प्रॉम्प्टिंग वाले भी फ्री है। ये सारी फ्री है। यू कैन जस्ट गो एंड डू योर कोर्सेज फॉर फ्री। तो आपको एआई सीखने के लिए मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरे पास पैसा नहीं है। और अगर आप सीखना चाहो यू कैन लर्न, तो देयर आर अ लॉट ऑफ फ्री कोर्सेज। और एक और मेरा फेवरेट है एनवीडिया। ये इस पे भी बहुत सारे, आप ताजुब करेंगे व्हेन यू सी द क्वालिटी ऑफ दिस कोर्सेज। देयर आर वेरी ब्यूटीफुल कोर्सेज। हमारे माइक्रोसॉफ्ट के भी फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। आप जस्ट गूगल पे जाइए, आप टाइप कीजिए फ्री कोर्सेज इन एआई, आपके पास में लंबी लिस्ट आएगी। आपको मेरे लिस्ट की भी जरूरत नहीं। However, आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। यू हैव टू फाइंड अ कोर्स जो आपके लिए, आपको लगता है आपके लिए है, एंड देन स्टार्ट लर्निंग। जैसे यहाँ पर अगर आप जाए एजुकेटर्स प्रोग्राम पे, तो यहाँ पर टीचर्स के लिए एआई के कोर्सेज हैं। तो आपको मैं अर्ज करूंगा कि प्लीज इन्वेस्ट टाइम और आप सीखें एआई। और मैं आपको अब अपने थोड़े से अपने बारे में भी बताता हूँ। अगर मैं औरों को एडवर्टाइज करता हूँ तो अपने को भी प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने गए साल जुलाई पे मैंने एक कंपनी शुरू की डॉक्टर बासु के साथ, और उसी का लोगो मैंने पहना हुआ है। दिस इज बेसिकली अ कंपनी विच इज अ टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म। इफ यू एज एन एजुकेटर हैव अ प्रोग्राम जो आप सिखाना चाहते हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए। वी कैन डिस्कस ऑन द रेम्यूनरेशन, किस तरीके से हम remunerate करें। We will advertise your course and then we both will make money out of it. So why we started AI Lopen? सबसे पहले हमने देखा कि जितने भी मैंने आपको कोर्सेज बताए यहाँ पर, ये कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज में ना आपको वो सारी चीजें भी बताइए जिसकी आपकी जरूरत नहीं है, फिर भी आपको बैठ के सीखना होता है। और टाइम जो है अब किसी के पास में नहीं है। हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। सो बेसिकली हमने कोर्सेज डिजाइन किए हैं प्रोफेशनल्स, by designed for professionals by professionals। हमारे पास टाइम नहीं है हर दिन नया एक टूल सीखने के लिए। हम वो आपको सीख के बताते हैं कि इन 10 टूल में से आप ये एक टूल सीख लीजिए, यू आर सॉर्टेड, राइट। एंड देन वी आर ट्राइंग टू मेक आवर कोर्सेज वेरी वेरी अफोर्डेबल, वेरी वेरी एक्सेसिबल। और एक चीज जो हम चाह रहे हैं अपने कोर्सेज में करने के लिए, वो ये है कि ये सारे प्री रिकॉर्डेड नहीं है। हम हर कोर्स नए डिजाइन करते हैं अपने लर्नर्स के लिए। अभी भूटान में हम इसको ऑनलाइन मोड पे नहीं कर रहे, हम फिजिकली कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इस पे हम ऑनलाइन भी कोर्स करते हैं। एंड दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ हमारे कोर्सेज कैसे दिखते हैं। ये एक कोर्स है जो कि एजुकेटर्स के लिए है। इस पे बेसिकली 4 मॉड्यूल है। देयर आर 4 मॉड्यूल। नंबर 1 मॉड्यूल, वी टीच यू अबाउट हाउ टू राइट, हाउ टू टॉक विद एआई, हाउ कैन वी एक्चुअली इंस्ट्रक्ट एआई टू गिव बेटर रिजल्ट्स टू अस। एंड देन द सेकंड वन इज अबाउट, सर एक्सक्यूज मी सर, यस, आपका शेयरिंग स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा सर। ओह ओह सो सॉरी, सो सॉरी। इट्स ऑलराइट। ओके सर, इट्स ओके। ओ, तो फिर आपने ये फ्री कोर्सेज के बारे में आपने देखा ही नहीं। तो मे बी आई जस्ट क्विकली टेल यू दैट अगर आप गूगल पे जाएं और आप जस्ट टाइप कीजिए फ्री कोर्सेज, मैं आपको ये लिंक भी भेज दूंगा। अगर आप ये देखिए, एनवीडिया एक है, यहाँ पर फ्री कोर्सेज हैं। और आप खुद ताजुब करेंगे once you start actually going through this website, you will see the quality of courses that we have. It's quite amazing. There are some definitely some paid courses, but the free courses are equally good. एलिसन जो मैंने आपको बताया, एलिसन के कुछ कोर्सेज हैं जो बहुत बेहतर है। एलिसन की एक दिक्कत ये है कि ये कोर्सेज फ्री है इनके, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको पैसे पे करने होते हैं। और अगर आप पैसे नहीं देना चाहते हैं तो भी आप एक ऐसी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, जैसे मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ,
जिसपे सैंपल लिखा होगा, बट ये सर्टिफिकेट बिल्कुल लेजिट एंड वैलिड है। उसके बाद में आप हमारे गूगल से सीखिए, आप यूकेडमी से सीखिए, आप स्वयं जो हमारा गवर्नमेंट का वेबसाइट है वहां से सीखिए, आप हार्वर्ड से सीखिए, एचपी से सीखिए, माइक्रोसॉफ्ट से सीखिए, लेकिन सीखे जरूर डीप लर्निंग, एआई, ये सारे जहां पर आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगे। गूगल वाला बहुत ही खूबसूरत होता है, कोर्सेज में बहुत सारे पेड कोर्सेज है, लेकिन ये आपके हैं फ्री कोर्सेज। जैसे ये एआई एसेंशियल, जनरेटिव एआई फॉर एजुकेटर, आई विल एक्चुअली रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू एक्चुअली गो एंड डू दिस कोर्स। ये 2 घंटे का कोर्स है, आपको एक एआई, मतलब गूगल का एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है। लेट मी जस्ट शो यू। जैसे अगर आप ये देखिए, ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, और अगर आप यहां पर देखते हैं जो कोर्सेज है, मैंने एआई से रिलेटेड कोर्सेज उस पे जो किए हैं, जो मेरे सर्टिफिकेट्स अगर आप देखें, इस पे बहुत सारे मेरे कोर्सेज हैं जो कि मैंने गूगल से किया है, और ये आप अपने रेज्यूम पे लगा सकते हैं। मैं कुछ इधर उधर से सीखता रहता हूँ। जैसे एलिसन वाला है, जनरेटिव एआई फॉर एजुकेटर, अगर आप देखें ये वाला, तो ये ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलता है, एंड दिस इज फ्रॉम गूगल, राइट? 2 घंटे में आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप दुनिया को दिखा सकते हैं। सो इसके लिए 2 रुपए नहीं लगेंगे आपको, आपको सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। सो आई रियली अर्ज एवरी वन ऑफ यू टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी और सीखें। और मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में बता रहा था। सो दिस इज बेसिकली द लोगो ऑफ माई कंपनी, जो मैंने खुद डिजाइन की है। आई एम नॉट अ डिजाइनर, मैं बिजनेस से हूँ, लेकिन मैंने अपनी कंपनी की वेबसाइट खुद बनाई है। मैंने अपने ये लोगो भी खुद बनाया है, जो ये पीपीटी प्रेजेंटेशन टेम्पलेट है वो भी मैंने खुद बनाया है, खुद सीखा है। पहले मैंने खुद सीखा, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज अ बिजनेस दैट आई हैव स्टार्टेड, और एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं ऐसा कुछ कर पा रहा, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एआई। और ये आप भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन योर ओन। और ये जो कोर्स मैं आपको बता रहा था कि जो हमने कोर्सेज, एक कोर्स है जो हमने एजुकेटर्स के लिए बनाया है, इस पे हम 4 चीजें सिखाते हैं। ये बहुत छोटा सा कोर्स है, कि पहले हम सिखाते हैं कि हाउ कैन यू एक्चुअली चैट विद एआई। आप एआई के साथ में किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करें एआई को, ताकि वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स दे। हाउ कैन यू क्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जैसे आप केस स्टडीज कैसे बनाएं एआई के थ्रू, आप सिनारियोस कैसे बनाएं, टेस्ट पेपर्स कैसे बनाएं, आप न्यू टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग, जैसे आप बच्चों को किताब पढ़ने देते हैं, हु रीड्स, नोबडी। आप एक पॉडकास्ट बना दीजिए बच्चों को यूजिंग नोटबुक एलएम। And then there are so many other AI tools. Let's say for example, Google ने अभी एक नया AI tool लॉन्च किया है, जिसपे आप पूरी की पूरी किताब आप अपलोड कर सकते हैं, एंड देन आपको कैसे सीखना है। अगर आपको एग्जाम्पल स्पॉट्स वाले चाहिए, जैसे आपको ज्योमेट्री सीखनी है, और आपको एग्जाम्पल सारे ही विजुअल्स में चाहिए, और आपको चाहिए कि जैसे आपको फुटबॉल बहुत अच्छे से आता है, आप उसको फुटबॉल का एग्जाम्पल देके बता सकते हो कि मैं इस तरीके से, जैसे किस एंगल पे मारे, क्या फोर्स से मारे, क्या आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए थी, आपको वो सारी चीजें उस तरीके से सिखाते हैं। आप अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को एक गेम की तरह बच्चों को दे सकते हैं, चैलेंज की तरह आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन द थर्ड मॉड्यूल, विच इज माय वेरी फेवरेट, इज असेसमेंट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी एज अ टीचर हमारी सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये है कि हम ये वेरीफाई ही नहीं कर पा रहे कि बच्चे आखिर कुछ सीख रहे हैं या नहीं। क्योंकि हम कुछ भी देते हैं, अगर हम उनको ऐसे देते, बच्चे एआई से करवा कर आपको दे देंगे, और आपकी ये जिम्मेदारी है टू प्रूव स्टूडेंट कि आपका एआई जनरेटेड मटेरियल है, राइट? सो अब हमें सीखना है कि किस तरीके से हम कोलैबोरेटिव असेसमेंट्स बनाए, जहां पर एआई को यूज करना बच्चों के लिए कंपल्सरी है, बट स्टिल यूजिंग दैट वो किस तरीके से सीखे। सो दीज आर द काइंड ऑफ असेसमेंट्स जो इस मॉड्यूल पे हम आपको सिखाते हैं। एंड देन डेफिनेटली हाउ टू बिकम अ फ्यूचर रेडी एजुकेटर्स, आप नए स्किल्स कैसे सीखें, क्योंकि अगर आपको ही नहीं पता तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे, राइट? सो ये सारी चीजें हम अपने इस प्रोग्राम में हमने डेवलप किया है ना। कोर्सेज हम पहले एक सर्वे करते हैं, फिर हम फीडबैक लेते हैं, एंड देन वी डिजाइन कोर्सेज, एंड देन वी डू कोर्सेज आइदर इन एन ऑफलाइन मोड और एन ऑनलाइन मोड। और दिस इज एन एक्सक्लूसिव ऑफर आई एम ट्राइंग टू मेक। एक्चुअली अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे कोर्सेज, दो इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट स्टिल इट इज
ये हमारी वेबसाइट है। और अगर आप अपने इस वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आवर कोर्सेज आर देयर, बट इट्स स्टिल यू नो लाइक इट्स क्वाइट प्राइसी। अगर आप देखें जैसे 2000-3000 के कोर्सेज हैं, अगर आप मार्केट पे जाकर देखें तो इट इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन व्हाट आई वाज टॉकिंग टू सर तन्मय कि क्या ऐसा पॉसिबल है, इज इट अ पॉसिबिलिटी दैट इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड वी कैन लर्न टुगेदर, or if you all are interested I can create a free workshop। हम एक वर्कशॉप करते हैं जहां पर मैं आपको कुछ AI टूल सिखाऊंगा which is perfectly free। तब आपको पता लग जाएगा कि आप क्या इस चीज को सीखना चाहोगे या नहीं, एंड देन वी कैन टेक यू ऑन फॉर आवर कोर्स, या फिर हम डायरेक्टली कोर्स पे जंप कर सकते हैं। एंड देन the special price I have for you all is only 500 for this particular course that I'm going to offer. And then I'm going to share by the end of the presentation, I'm going to share with you all a registration form. If you all are interested, you can join and learn AI with me or using the free resources जो मैंने आपको share किया है। This is my contact detail। आप मुझे इन नंबरों पे, ये भूटान का नंबर है और इस पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप। और ये मेरी कंपनी का ईमेल है, आप इससे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल ईमेल भी शेयर कर दूंगा। So basically this is what I have for you all today। I don't know how this session was. So Tanmay ji, maybe we can now take some questions। अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई questions हो, आप मुझे बताना चाहे, मैं आपको help कर सकता हूँ। या फिर if you all are interested, I can show you a few AI tool जो मुझे definitely लगता है कि आप में से किसी को पता होगा कुछ AI tools के बारे में। मैं जैसे स्टार्टिंग में आई हर्ड कि आप लोग अपने वीडियोस बंद करो, आप अपने आप को म्यूट करो। इफ बट आई अलाउ यू ऑल टू शो मी योर, लाइक यू आर मोर देन वेलकम टू टर्न ऑन योर कैमरास एंड देन maybe interact with me। Let me quickly share my personal email with you all। ओके, एंड देन maybe मैं अपने कंपनी के ईमेल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इफ यू वांट कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी। द अदर नंबर इज मेरे बिजनेस पार्टनर का है, इज अगेन अ वेरी अमेजिंग AI कोच। डू आई हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? चलिए, अगर आपके पास में सवाल नहीं है तो मे बी अगर आप में से एक या दो सवाल करते हैं तो आई कैन शो यू, मे बी आई कैन demonstrate one very interesting AI tool। If you want to learn a new exciting AI tool, मैं आपको दूंगा, लेकिन तभी दूंगा जब मेरे से कोई वीडियो खोल के कोई सवाल करता है। नहीं तो नहीं होगा, कोई फ्री AI टूल नहीं मिलेगा। किसी का कुछ सवाल है? किसी का कोई सवाल ही नहीं है। Maybe the session was so maybe I was very clear कि सभी को सब कुछ समझ में आया, और maybe the language that I was speaking was not very clear। मैंने आप जैसे बोला, मुझे बंगाली इतनी अच्छे से नहीं आती है। How can student balance between using नहीं, AI नहीं, tools for help? ऐसा बात नहीं है सर। अगर किसी को जानना है ना तो चैट बॉक्स में अगर बंगाली में भी लिख दे तो हम उसको कन्वर्ट करके आपके साथ आप बंगाली में मेरे से सवाल डेफिनेटली पूछ सकते हो। आई डू अंडरस्टैंड एंड आई कैन आल्सो स्पीक, बट आप लोग सब मेरा मजाक बनाएंगे फिर। Good evening, sir. We have हाँ, a प्लीज question स्वाति from, दी प्लीज। yes। Uh, Good evening, sir. I'm Dr. Mhm. Swati Lekha from Salavela University, Ranchi. So I'm from humanities background. Like Okay. I teach, I'm an English department professor. So I'm asking, like, yes, our students do use this, Chat Yes. GPT. Yeah. Thing is like that. So I feel like that the creativity lost. Absolutely. So because they don't use their creativity to write their own, Mhm. their experiences, their feelings, and literature is all about sharing emotions and feelings. Yes. So so it is like a big challenge for us, for Mhm. teachers.
Yes, So definitely is. so now, as you said, a very interesting thing that we have to use AI Mhm. for, because we have to incorporate AI for enhancement and improvement. जी, So students should not depend on completely to AI, बिल्कुल। because they will become lazy. And so that's the thing. So it's very interesting you talked about that metacognitive, that जी, development. It's जी, very important. That is बिल्कुल। my takeaway. I'm so thankful to you for speaking about that. So so I would love to have at a workshop like that with बिल्कुल, बिल्कुल मैडम। students. We can Yes, definitely to craft a workshop for you and then yes. मैडम मैं आपको एक maybe हाँ, something that you can do जो कि आप मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे एक हाँ. चीज़ जो होता है कि आप अपने बच्चों को बता सकते हैं एंड रीइमेजिन असाइनमेंट। जैसे मैंने Reimagine, किया yes. था Imagination, कि very आप important. हिटलर को Mm. मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था हाँ, बच्चों को कि आप सोचिए कि mm, हिटलर इज़ अबाउट लाइक अब हिटलर को एग्ज़ीक्यूट करने वाले हैं और आपको mm, हिटलर को इंटरव्यू करना है। तो मैंने mm. एआई को ट्रेन किया था टू एक्ट एंड बिहेव लाइक हिटलर और बच्चों को हिटलर को इंटरव्यू Okay. करना है एंड देन Interesting. दे हैव टू Mm, आस्क क्वेश्चंस। तो mm. मेरे बच्चों ने वो असाइनमेंट इतना एंजॉय किया। मैं इनिशियली तो वो बकवास कर रहे थे लेकिन एज एंड Okay. व्हेन दे स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्वड एज अ रियल इंटरव्यूअर बिकॉज जब आप सुनते हैं ना तो और आप उसके डायरेक्ट इंटरव्यू कर रहे हैं तो Yes. that became like a very good assignment and I think मैंने मुझे एक क्लाइंट मेरा एक क्लाइंट था जिसको he was from a music background and वो मुझसे पूछ रहे थे कि माधव सर आप मुझे एक दिन का सेशन दीजिए जिस पे maybe I can use AI tool तो मैंने उनको 2 AI टूल सिखाए थे बिल्कुल और बहुत सिंपल था मैंने उनको Okay. दिखाया कि कैसे आप लिरिक्स लिख सकते हैं यूजिंग एआई और Mm, लेकिन वो लिरिक्स आता ना अगर आपको गाना नहीं पता है और आपको गाने की समझ नहीं है यू विल फाइंड दैट लिरिक्स वेरी ब्यूटीफुल आपको बहुत सुंदर लगेगा अरे वाह 2 मिनट में आपको गाने मिल गए लेकिन जिस आदमी को गाने की समझ है द स्टूडेंट हु एक्चुअली नो व्हाट एंड हाउ टू राइट समथिंग वो इंस्टेंटली समझ जाएंगे कि इसमें क्या लूप होल है क्योंकि एआई का जो राइटिंग स्टाइल होता है वो बहुत मैकेनिकल होता है yes, yes. Very राइट true. तो Mm, यू कैन नॉट इफ और हर किसी का अपना एक पर्सनल वॉइस होता है एज अ स्टूडेंट mm, ऑफ इंग्लिश यू नीड टू हैव दैट ओन पर्सनल वॉइस mm, तो मैंने उनको दिखाया कि चलिए आपको एक रोमांटिक सीन का गाना लिखना है आपको एक आ गया है आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया नाउ आप इसको इम्प्रूव कीजिए आप इसको कैसे बेहतर बनाएंगे एंड mm, देन फिर हमने उनके साथ में मिलकर फिर सुनो एआई पे हम गए और फिर उसको इंस्टेंटली नहीं तो वो सिर्फ लिरिसिस्ट थे he was only mm, writing songs for someone else to sing he was only writing mm, someone to give music but now mm, with mm, using AI he is not only writing his own song he is composing his own songs तो आप देख wow. सकते हैं कि वो he is now Mm, enabled right mm, okay, I okay. have so definitely Dr. Swati we can always Yes. collaborate and then we can Yeah. find some session Yes. where we'll see what जो थोड़ा बहुत मुझे Yeah. पता है I'll definitely want to share and love to Yeah. share that with you we Yeah. have 2 questions on Thank you, sir. Mm. we have from Divya Nayak how can student balance between using AI tools अब जैसे मैंने आपको बताया दिव्या कि दिया नायक कि एआई जो है हेलुसिनेट करता है अगर आप एआई से कहें कि आप मुझे बताइए भगवान के बारे में बताइए राइट वो आपको कभी नहीं बोलेगा उसको कुछ नहीं आता वो आपको बता देगा अगर आप एआई से रिसर्च पेपर लिखवाते हैं आप असाइनमेंट लिखवाते हैं अपने बच्चों ने देखा होगा आपके टीचर फट पहचान जाते हैं कि असाइनमेंट एआई का लिखा हुआ है आप उसको क्विल बॉल भी आप यूज करके उसको पैराफ्रेज कीजिए फिर भी पता लग जाता है क्यों क्योंकि एआई जो है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे काम करता है इट इज बेसिकली सेट ऑन सर्टेन रूल्स वो उनके पास में ऑलरेडी एक डेटाबेस है उसी को रिप्रोड्यूस करता है हमारे लिए तो आपको एआई आपको ब्रेनस्टॉर्म में मदद करेगा इट इज गोइंग टू गिव यू द फर्स्ट ड्राफ्ट कि चलिए आपको एक फॉर एग्जांपल आपको एक रिसर्च पेपर लिखना है जो मैंने अपने बच्चों से करवाया था तो मैंने उनको बोला कि चलिए आप लिटरेचर रिव्यू आप एआई से कीजिए लेकिन उनको एआई से आपको सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करना है उनको अपने लिटरेचर रिव्यू का एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि चलिए मुझे इन सब ऐसे टाइप के पेपर्स मुझे चाहिए देन दे कैन गो टू गूगल स्कॉलर और स्कोपस पे जाके वो उन तरीके के पेपर्स लेकर आए then I also shared with them a few AI tools जो उसको summarize कर सकते हैं and then fantastic AI literature review उन्होंने लिखा sorry not AI literature review but बहुत बेहतर literature review बच्चों ने लिखा था जहां पर वो बच्चे 5 पेपर्स पढ़ सकते थे मैंने उनको बताया कि अब 50 से नीचे तो मैं लूंगा नहीं you have to now read a minimum of 50 papers so
हमारे आउटपुट की क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, हम ज्यादा पेपर्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं. सो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन इन शॉर्ट, बेसिकली जो आउटपुट आपको आता है ना, उस पे आप काम कीजिए, वो आपको सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म में मदद करेगा. सो डेफिनेटली योर क्रिएटिविटी इज गोइंग टू एनहांस. एंड देन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम सोमू Karmakar. Sir, I have a question that what is the best AI app for mathematics purpose? All right. Okay, so there are a few AI tools. लेकिन मैथ्स का ये प्रॉब्लम है कि ये आपको हर एक बार एक नया सा कुछ दे देगा. चैट जीपीटी भी अभी काफी इंप्रूव हो गया. माइक्रोसॉफ्ट का जो है, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, वो भी बहुत सही है, आप यूज कर सकते हैं. लेकिन मैथ्स के लिए एआई टूल अभी तक इतना बेहतर बनकर नहीं आया है, और अगर आया भी होगा तो मेरे नॉलेज में नहीं है. इट विल ऑलवेज कम आउट विद सम अनरियलिस्टिक सॉल्यूशंस. आप उसको बस उसको पूछना है कि क्या डू यू थिंक दिस इज करेक्ट, वो आपको फौरन से दूसरा आंसर दे देगा. Somuji, please stay in touch with me. If I find some good AI tool for mathematics, I'll definitely share. वैसे mathematics में एक बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो if it is a routine sum, AI will definitely be able to do it. But अगर इस पे काफी मतलब there's a new way of doing it, then AI नहीं कर पाएगा. It is going to give you blunder. So ये एक AI की limitation है. चलिए, because some of you have actually answered, let me show you what AI can do. Okay, आप ड्यूरेबल AI करके एक टूल आपने देखा होगा. इस पे आप बिना कुछ मेहनत लगाए आप एक अपने लिए बहुत खूबसूरत सा वेबसाइट बना सकते हैं. ड्यूरेबल AI पे आप जाइए. यहाँ पर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपने लिए बनाता हूँ AI लोपेंस करके, मुझे एक वेबसाइट बनाना है. ओके, सो क्रिएट a website for a teaching learning platform. आप में से किसी ने इसके बारे में सुना है, ड्यूरेबल एआई के बारे में? Why am I showing you this is it can actually open avenues for you. आप एक नई स्किल सीख सकते हैं. जैसे अगर आप फाइबर पे अगर आप जाएं, तो फाइबर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे नए नए जॉब्स मार्केट पे अवेलेबल हैं, जो कि आप बिल्कुल लगाकर आप साथ साथ कर सकते. मतलब आप सीखिए और या फाइबर पे आइए, फाइबर पे आप रजिस्टर कीजिए, आपको रिमोट जॉब्स आपको मिल जाएगी, और आप एआई को यूज करके आप अपने आप को पब्लिसाइज भी कर सकते हो. ओके, क्रिएट नेक्स्ट, जस्ट स्टार्टिंग. आप इसके जो सवाल है आप इस पे भर दीजिए. आप इसको थिंकू. नेक्स्ट. सर आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा सर. Oh God. So sorry. I was actually demonstrating how to use durable AI. एक second, let me just quickly share. Oh. ओके, सो बेसिकली अगर आप वेबसाइट पे गूगल पे जाए, गूगल पे जाके अगर आप टाइप करते ड्यूरेबल एआई, तो आप ये सेकंड वाला जो है ये आप क्लिक करिए, तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर आप फौरन से, जैसे अगर आप देखिए मैंने बातों बातों पे एक पूरा का पूरा वेबसाइट अभी यहाँ बन गया मेरा, और ये वर्किंग वेबसाइट है. आप इसको फौरन से पब्लिश कर सकते हैं. तो उस पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उस पे यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको बस उस पे क्लिक करके आपको इसको सिर्फ बातें करनी है, और इस पे आपको साइन इन करने की भी जरूरत नहीं है. जैसे यहाँ पर है, आपने उसको टाइप किया और स्टार्ट फॉर फ्री, और आप इसको होस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको पैसे मिलने शुरू होंगे आप इस कंपनी को पैसे पे करते हैं. सो दिस इज व्हाट AI कैन डू. अब देखिए ये वेबसाइट, मुझे बिल्कुल वेबसाइट बनाना नहीं आता, लेकिन आप यहाँ देखिए ये बिल्कुल आपके सामने एक वेबसाइट बनकर तैयार हो रहा है, जो कि मैंने बिल्कुल 1-2 क्लिक पे बनाया है, भी बन ही रहा है. एंड देन यू कैन सेल. देखिए पूरा का पूरा एक शानदार सा वेबसाइट मेरे सामने बनकर आ गया है. तो इजंट दिस ग्रेट? और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस, और मैंने इसके लिए साइन इन भी नहीं किया. एंड दिस इज फ्री. आप इसको बिल्कुल पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्री में इसको पब्लिश करते हैं तो आपके जो डोमेन है उसमें ड्यूरेबल एआई भी आ जाएगा. लेकिन अगर आप इस पे पैसे देते हैं तो फिर ये ड्यूरेबल एआई नहीं आएगा, और इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ भी चेंज करना आप कर लीजिए.
जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैंने अपनी वेबसाइट खुद बनाई है, लोगो मैंने खुद बनाया, जबकि मुझे आई एम नॉट अ डिजाइनर, बट बिकॉज ऑफ एआई इट्स पॉसिबल। और एक और टूल जो मैं आपको बताना चाहूंगा, विच आई एम श्योर कि अब ये काफी वो हो चुका है, पॉपुलर हो चुका है, विच इज नैपकिन एआई। अगर आप नैपकिन एआई पे अगर आप देखते हैं तो इट्स बेसिकली अ टूल जहां पर आप इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं। जैसे अगर आपने मेरी प्रेजेंटेशन देखी, वो प्रेजेंटेशन इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी, तो आप नैपकिन एआई पे जाके आप ऐसे अच्छे इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर इन चीजों को, आप जो भी आपको ग्राफिक्स बनाना है, आप यहाँ पर आप इस पे डालिए और फिर आप उसको इन्फोग्राफिक्स पे कन्वर्ट कर दीजिए, राइट? ये सारे मैं एक्चुअली सोच रहा था कि अपने इन्फोग्राफिक्स यूज करूं, लेकिन मैंने जैसे आप क्या, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। आप में से किसी ने यूज किया है नैपकिन एआई? हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, तो अगर आप नैपकिन एआई आपने यूज किया है, तो यहाँ से आप बहुत खूबसूरत से यू कैन क्रिएट वेरी ब्यूटीफुल इन्फोग्राफिक्स, जैसे यहाँ दिख रहा है। और अगर मैं आपको अपने उस पे दिखाऊं, जैसे आई यूज एआई फॉर एवरीथिंग, जैसे कि अभी परप्लेक्सिटी का एक नया ब्राउजर आया है, वो भी बहुत अच्छा, कॉमेट, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। परप्लेक्सिटी बच्चों के लिए फ्री है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे एयरटेल आपका सब्सक्रिप्शन है, आप परप्लेक्सिटी यूज कीजिए, परप्लेक्सिटी से बहुत खूबसूरत ऐप आप बना सकते हैं अपने रिसर्च के लिए। और अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और बता दूं यहाँ पर, जैसे कि अगर आपको ये ईमेल है, अगर इस ईमेल पे आपको मैसेज भेजना है, तो आपको पहले इसको पढ़ना होगा, फिर उसको रिप्लाई करना होगा। आप कुछ एआई टूल्स जैसे मोनिका है, मैक्स एआई है, इसको अगर आप अपने प्लगइन्स में डाल देते हैं, तो ये आपको पूरा का पूरा ईमेल आपको पढ़ के भी देगा, और साथ ही साथ आप इस पे इसको रिप्लाई भी आप करा सकते हो। जैसे कि ये पूरा का पूरा इसने ईमेल पढ़ा है, मुझे ईमेल पढ़ने की जरूरत भी नहीं हुई है। All it is saying is the sender 16 personality aims to engage the recipient with insights into how personality type strengths can be used, can also be a blind spot leading to flawed decision. So maybe I'll just say thank you for the information. Thank you for the information. और मैं चाहता हूं कि इस यही हो, और ये पूरा का पूरा मेरे लिए एक ईमेल लिख देगा। I can make that email more professional. I can make this email sound more empathetic. और फिर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। आपने से किसी ने सुना है ये टूल के बारे में, मैक्स एआई के बारे में? नहीं सर, नहीं सर। नहीं। So this is also an AI tool जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैंने किया इंसर्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, आपका पूरा का पूरा ईमेल आपका यहाँ आ गया है, देखिए, और इसको आप भेज सकते हैं। So, and then Max AI can do a lot more. I don't know, because many are not responding. So, and then the time is also over for the session. What I will do is I'll share survey form with Sir तन्मय जी, या फिर मैं अपने चैट में ही एक सर्वे फॉर्म लगा देता हूँ। आप उस सर्वे फॉर्म को प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फिल दैट अप। फिर मैं एक वर्कशॉप प्लान करूंगा, फ्री वर्कशॉप, जहां पर मैं आपको कुछ एआई टूल के डेमोन्स्ट्रेशंस दूंगा, एंड देन डेफिनेटली आई कैन इनवाइट यू फॉर learning journey with AI Lopen, so that also I can maybe we can do that. But for now, this is all I have to offer. Okay, sir. Thank you, Tanmay ji, for the opportunity, and thank you all Sir, for being sorry to say being about that. patient and silent. My name is With us. Ujjwal Mahato, sir. Oh, cool. But then it was written Tanmay, so that is why I've been calling you Tanmay ji. So No sorry for problem, sir. that. No problem. Okay, we have a raise of Another hand, question, Rabin sir, Banerjee. from Rabin Banerjee, sir. Okay, सर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाँ सर, ये जो टूल, एआई टूल मार्केट में आया है, तो ये टूल हमारे पर्सनल डाटा को कितना सेफ रखती है? हमारे जो पर्सनल डाटा, मेल आईडी वगैरह जो है, और
मेरा जो पर्सनल डाटा, नेम, डेट ऑफ बर्थ और सारे कुछ है, ये हाउ फार इट इज सेफ फॉर AI इंडस्ट्रीज? Now, this is something that, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, nothing in this world is free. अगर आपको कुछ चीज फ्री मिल रहा है, that means you are the product. So yes, definitely data infringement होता ही है. So that is why you have to know कि आप कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं. Nowadays we are very fortunate to live in a time. आप AI टूल्स आप अपने डेस्कटॉप पे लॉन्च कर सकते हैं. जैसे DeepSeek का जितने भी जो फ्री AI टूल्स जो है, आप उसको अपने सिस्टम पे लॉन्च कर लीजिए, एंड देन फिर उससे ये होगा कि उसको आप ऑफलाइन मोड पे चला सकते हैं. तो आपके जो डेटा है वो आपके सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आप उसको बेसिक कामों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे प्रूफ रीडिंग हो गया है, छोटे मोटे क्रिएटिव कामों के लिए यूज कर सकते हैं. बट डेफिनेटली व्हेन यू आर यूजिंग समथिंग फॉर फ्री, तो अगर जैसे आप चैट जीपीटी भी अगर आप प्रो वर्जन ये सब यूज करते हैं या फिर इंडस्ट्री वर्जन आप यूज करते हैं, तो आप चैट जीपीटी के साथ में आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप मेरे डेटा को यूज मत कीजिए. सो इट ओनली हैपेंस देन, अदरवाइज वो आपका डेटा फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलेगा सर आपको. अगर आपको कोई चीज फ्री मिल रहा है तो डेटा, जैसे आप फेसबुक को ही देख लीजिए, दे टेक एवरीथिंग. जब भी आप कोई नया ऐप लॉन्च लेते हैं तो आपको बोलते हैं कि उनको एक्सेस हर किसी का चाहिए, एंड यू हैव टू गिव एक्सेस, अदरवाइज आप यूज ही नहीं कर पाते. और सर, ये Sorry जो to परप्लेक्सिटी है, break that news to you, sir. और ये जो परप्लेक्सिटी है जो एयरटेल की तरफ से दिया जा रहा है, वो हमारे मोबाइल से रनिंग जी. किया तो हमारे हमारे मोबाइल का अंदर में जो सारे डाटा है, ये कितना दूर तक सेफ है? अब ये मुझे इतना आइडिया नहीं है, सॉरी सर, आई रियली डोंट नो अबाउट दिस, बट yeah, I have no idea about that, sir. I don't know if they are actually, I'm sure they are using, क्योंकि फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता सर. So I'm sure they are using everything. आप जब भी आप, even if you are using app, अगर आप Facebook के साथ अगर आप कुछ बातें भी कर रहे हैं, Facebook is listening, constantly listening. आपको उसी तरीके से ऐड देता है. बट बेसिकली दे आर्ग्यू कि ये सब चीजें हमारे ही इंफॉर्मेशन के लिए है, हमारी ही सेफ्टी के, मतलब हमें बेटर सर्व करने के लिए. बट डिजिटल थ्रेट्स इज वेरी, ब्लैकमेलिंग इज वेरी कॉमन. तो या ये डर तो थोड़ा बहुत रहेगा. इसीलिए व्हेन वी वर्क विद इंस्टीट्यूशन, हमारी कंपनी पे हम ऑर्गेनाइजेशन को इसी बात पे हम करते हैं कि आप एआई लोकली लॉन्च कीजिए, यानी आप अपने सर्वर पे कुछ एआई टूल्स लगा लीजिए और फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप उससे रन कीजिए. आप ओपन सोर्स पे, मतलब ऑनलाइन आप कोई भी डाटा मत डालिए, फिर वो डेटा आपके पास रहेगा. लेकिन सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि परप्लेक्सिटी जो फ्री वाला जो आप मोबाइल से यूज करते हैं वो आपके डेटा को लेता है या नहीं. दैट आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी सर, बट डेफिनेटली आई कैन फाइंड दैट आउट एंड शेयर इट विद द टीम. Thank you. Do you have any questions? Sir, I want to ask a question. Yes, please go ahead. Whenever we are talking about the research and from the ethical perspective, and originality is a big issue. So, what should be the criteria based on which I can draw the borderline between should use and should not use the AI? What should be the criteria based on which I can draw this borderline? Okay. Again, sir, I think, to be very honest, I don't have the answer, but I can share what I do. Because I don't have the, I think I don't have that capacity to say this is right and this is not, you must not do it, you must do it. So what I do is, I have written a lot of research paper using AI. लेकिन जब आप AI को use करना शुरू करते हैं ना, then you know that it is only a tool. जैसे आपने अगर connecting papers के बारे में आपने सुना होगा, वो थीमेटिक एनालिसिस बहुत, और ये बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बहुत बेहतर तरीके से करता है, लेकिन आपको उसके साथ में बैठकर काम करना पड़ता है. सो यू आर यूजिंग एआई टूल, बट यू आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग. आप ये नहीं कह रहे कि चलो मेरे लिए पेपर लिखो, वो पेपर निकाल के आप सबमिट करोगे, वो आप नहीं करते. यू हैव टू कोलैबोरेटिवली वर्क विद एआई. जैसे कि अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में पता हो, एंड इफ यू आस्क एन एआई टू राइट एन इंट्रोडक्शन, you will see that there are 10 things that it has not been able to write for you, and then you can rewrite that part, but it definitely saves you the thinking part, sir. जैसे कि आप डेटा एनालिसिस करते हैं, तो आप डेटा एनालिसिस के लिए आप अपने डेफिनेटली अपने रॉ डेटा हम
आई सजेस्ट नॉट टू ऐड, मैं नहीं डालता, बट डेफिनेटली मैं क्या करता हूँ कि मैं एआई से पूछता हूँ कि मेरी एक ऐसी रिसर्च है, इस तरीके का डेटा मुझे मिला है, आप मुझे बताओ कि किस कौन कौन से मुझे टेस्ट रन करने चाहिए, मुझे इस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं, आप बताओ मुझे आगे क्या करना चाहिए। आई यूज इट इन दैट वे, बट देन मैं रॉ डेटा बिल्कुल भी नहीं डालता एआई। Okay, I sir. don't know if Okay. I've answered your question, but there are some journals जो कि AI written papers को accept करते हैं। मुझे बात कहनी चाहिए या नहीं चाहिए, मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने एक पेपर कंप्लीट हेड टू डाउन कंप्लीट एआई से लिखवाया। डेफिनेटली मैंने कोलैबोरेट करके लिखा, बट स्टिल एवरीथिंग वाज एआई रिटन और पेपर सबमिट हो गया। मैं बस देखना चाह रहा था कि ये पकड़ते हैं या नहीं, या मतलब वो अलाउ नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी रूल नहीं था कि आप एआई यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट स्टिल जस्ट मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए किया एंड एक्सेप्ट हो गया। Not in a very good journal, but still it did get accepted because there's no way you can differentiate कि ये AI generated है, ये AI generated नहीं है। There is a way to easily maneuver around it. इसीलिए ethics बहुत ज्यादा जरूरी है सर। जैसे कि just to give you an analogy, अगर एक डॉक्टर के हाथ में एक आप चाकू देते हैं और एक चोर के हाथ में एक चाकू देते हैं, चाकू सेम है, लेकिन उसके यूज करने के ऊपर डिपेंड है कि कौन यूज कर रहा है। So I think as a researcher, as an educator, we have to be morally and ethically responsible. AI जब नहीं था तब भी लोग गलत काम करते थे, जैसे कि डेटा घर पे खुद बैठ के बनाते थे हम, 10 सर्वे क्वेश्चन भर के आए, 50 हम खुद भरते थे। तो these things were always there, sir. So ये ethics अपने ऊपर है, और I think the researcher, the paper that is allowing, they should set a very clear boundary कि आप कहाँ यूज करें और कहाँ यूज नहीं करें। I don't know if I've answered your question, but yeah, this is what I do, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Maybe अगर हमारे sir allows, I will basically share a survey form हमारे group chat में मैं share करता हूँ, Please, sir, please. and then publish. Okay. And I'm just sharing this in the group chat. और उसके बाद में मैं बैठकी के टीम्स के साथ भी इसको शेयर करूंगा, सर उज्जवल के साथ भी शेयर कर दूंगा, एंड देन आप प्लीज इसको भर दीजिए, एंड देन लेट्स सी इफ यू कैन कम आउट विद सम न्यू वेज ऑफ कोलैबोरेटिंग, एंड देन प्लीज विश मी लक, एंड देन आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि मेरी कंपनी चल पड़े। अभी हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, इट्स डूइंग वेल बट नॉट एज व्हाट वी एक्सपेक्टेड, so please do pray for me and my business. So Ujjwal ji, do we have anything more or should we wind up? Yes, sir. We are very close to the end of this session. खत्म करने के पहले ये सर्वे फॉर्म क्या फिलअप कर दे सब? हाँ, अगर आप लिंक ले लीजिए या फिर एनीथिंग इज गुड फॉर मी। अच्छा, सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ग्रुप चैट में जो सर ने जो गूगल फॉर्म का लिंक एक भेजा लिंक है। दिया हुआ है, फीडबैक फॉर्म, उसको आप कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर लीजिए, बाद में वो सर्वे फॉर्म आप फिलअप कर दीजिएगा। जी। And then I've also shared my personal details with you all. आप उसको देख लीजिए, आप मुझे LinkedIn में आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी I keep posting about new AI opportunities, AI tool, आप वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। And then for students, we have created a course जहाँ पर हम आपको सिखाते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर हों, आप एक नए जॉब्स के लिए आप कैसे एआई को यूज करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप ऑप्टिमाइज अपने ये लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे आप पोस्ट लिख सकते हैं, कैसे आप इंगेज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास में एक कोर्स है। देयर आर क्वाइट नंबर ऑफ कोर्सेज इन पाइपलाइन। डू स्टे कनेक्टेड, वी विल बी इन्फॉर्मिंग यू। आप हमारी कंपनी के लिंक्डइन को भी आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में भी हमारे पास में पेज है, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
And then let's see if I get another opportunity with you all, or maybe we can. I'll invite you for a workshop. जहाँ पर maybe I'll have a free workshop आप सभी के लिए. Maybe we can have 2 workshops, one for teachers, one for students, so that we can make it more useful. So is that it? Should we call the day? Okay, sir. Okay. All right. Thank you very much, and my heartfelt gratitude to you for join this discussion at the invitation of a complete stranger. So sorry, the light went off. Actually, my current is cut off now. जी. A complete stranger and engaging all of us. We hope to receive your sincere cooperation in the future as well. We Definitely. have an official plan to produce a book volume on the topics which will be discussed in this Boitoki. Mhm. And I hope to receive your cooperation in this regard as well. We Sure, hope to definitely. WhatsApp group, and another request to you, we have a WhatsApp group of all the resource person include in this group. If you have a kind permission, I would like to add you there. Yes, yes, definitely. Thank you, all of you, all the participants, all the faculty members, Dr. Shati Lekha Mahatodi, Rabin Banerjee sir, Animesh Chaudhary sir, Dr. Mausumi Bodal madam, Professor Amulya Kumar Acharya sir, Paulomi Mukherjee ma'am, and so many faculties who joined in this session. Thank you, all of you, and all the students, all the participants of this Boitoki who are joined in this session. All of you, thank you so much from the Boitoki. Good night. Yeah. I think there was a raise of hand from Brahma I Mahanandan. think I think by mistake. Okay, all right. Thank you so much, sir. All right. Thank you. Have a good night, Thank you. everyone. Thank you so much for being such a patient and quiet listeners. All right. Good Thank night, you. sir. Thank Good you, night. Dr. Swati. Thank you, Dr. Rabinji. Please do stay connected. आप मुझे Insta पे let us get together, and then maybe we can plan something together. Google I'm Form sure that fill up कर दिया sir. Gee, thank you so much, sir. I'll definitely get in Okay. touch with you all, and then I'll inform Okay. you through Sir Ujwal if we can do some workshops. Okay. बच्चों के लिए एक Okay. अलग से करते हैं, teachers के लिए एक अलग से करते हैं. Okay, sir. Okay. All right. So good night, Good everyone. night, sir. Good night. Stay safe. Bye. Bye.